اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ہلو، ہاں ہلو، کون صاحب بول رہے ہیں؟ آپ کون سا بات کر رہے ہیں؟ میں تو صادق علی بات کر رہا ہوں گجرات پولیس سے۔ اچھا جی، آپ شام الحرمین پہ بات کریں گے؟ تو آپ بات کریں گے؟ ہاں جی، ہیلو جی بولیے۔ The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. ہلو، ہاں جی، آواز آ رہی ہے؟ اور لائن پر کون ہے بتا دیجیے گا، اور بات کون کرے گا؟ لائن پہ کوئی نہیں ہے، میں ہی ہوں، میں ہی بات کروں۔ کانفرنس آپ نے کسی کو لیا ہوا ہے؟ میں اس لیے پوچھا کہ بیچ میں وہ خلط مباحث نہ کرے، ہے کون بتا دیں؟ کسی سے ٹینشن کیا؟ میں کس میں کانفرنس بتا رہے ہیں، آپ نے کانفرنس کیا تو بتا رہے ہیں، ریکارڈ ہو رہا ہے تو آپ سنیے گا۔ چلے بہرحال اگر آپ ہی بات کر رہے ہیں تو کریے۔ جی، تو سب سے ٹھیک ہے، پہلی بات شرائط طے کر کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اسی میں جو ہے لوگوں کو بھی گفتگو سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے؟ کریں آپ کیا شرائط طے کریں گے؟ جی ٹھیک ہے، تو میں شرائط بولوں گا، اگر آپ کو منظور نہ ہو تو آپ اس میں سے جو ہے کاٹ سکتے ہیں، دوسرا شرائط ہم اٹھا کے رکھ لیں گے اس میں۔ دیکھیے، میں آپ کو شرائط بتاتا ہوں۔ شرط نمبر 1، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہذب انداز میں گفتگو ہوگی، کوئی کسی کا نام نہیں بگاڑے گا، کوئی کسی طرح کی بد کلامی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور شرط نمبر 2، 3 منٹ کر بات ہوگی، 3 منٹ آپ بولیں گے، 3 منٹ میں بولوں گا، اور میرے 3 منٹ میں آپ بیچ میں بولے تو آپ کی شکست، اگر آپ کے 3 منٹ میں میں بولا تو میری شکست، ٹھیک ہے؟ اور تیسری شرط یہ ہے کہ موضوع سے اگر ہٹے تو اس کی شکست، جو موضوع سے ہٹے گا اس کی شکست ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ دونوں آپس میں جو ہے کسی کو گالی گلوچ یا لعنت اللہ ایسا کچھ بھی نہیں کہیں گے، بالکل مہذب انداز میں آرام سے اور دلائل کے ساتھ، اور جو ہے جو بھی عبارت پڑھیں گے، جو بھی جو ہے موضوع بتائیں گے، جو بھی مطلب دلائل پیش کریں گے، اس کا جو ہے حوالہ واٹس ایپ پر پرسنل پہ بھیجنا پڑے گا۔ منظور ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے، میں رکھوں کچھ؟ میں بولوں؟ آپ کو میرے شرائط منظور ہیں؟ ہاں تو پھر اسی ایک دو شرط مجھے منظور نہیں، اسی پر میں بات کر رہا ہوں نا۔ ایک شرط یہ ہے، آپ نے دوسری شرط رکھی تھی کہ 3 منٹ بات کر کے 3 منٹ بات کریں گے، اس میں کوئی خلط مباحث نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے، کوئی خلط مباحث نہیں کرے گا۔ اگر اس دوران میں اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے، میں یا آپ، اس 3 منٹ کے اندر میں یا آپ میرا جھوٹ پکڑتے ہیں تو میری شکایت ہو جائے گی، اسی دوران میں آپ کو بولنے کا حق پورا ہوگا۔ اور میں اگر اس دوران پکڑ لیتا ہوں نہ آپ کی میں نے شرطیں مانی، آپ کو میری شرطیں ماننی پڑے گی، یعنی آپ مان رہے ہیں کہ آپ جھوٹ بولیں گے؟ ایسے نہیں، آپ خاموشی سنیے میری بات، خاموشی سنیے، میں نے آپ کی بات پوری خاموشی سنی ہے، مجھے میری شرط رکھنے دیجیے، آپ نے رکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ بیچ میں جھوٹ بولتے ہیں، میں آپ کو اسی جگہ پکڑ کر کے آپ کی شکست کا اعلان کروں گا فوراً ہی۔ شرط نمبر 1 میری ہو گئی، ٹھیک ہے؟ 3 منٹ والی بات تو اپنی جگہ طے ہے، لیکن میں نے اپنے پاس ایک شرط رکھی ہے، میری شرط بھی آپ کو ماننی ہوگی، جو کہ آپ کی میں نے مانی ہے، ٹھیک ہے؟ ہلو، اور آپ دوسری شرط ہے کہ آپ کو اپنا دعویٰ مکمل بتانا ہوگا، دعوے پر حکم بھی لگانا ہوگا، کہ دعوے پر جو بھی حکم لگے گا سب کے اوپر وہی حکم لگے گا۔ اگر آپ حکم لگانے سے گریز کریں گے، بھاگیں گے، تو وہی حکم آپ پر بھی لگے گا اور وہی حکم آپ کے مسلک پر بھی لگے گا، پیچھا نہ چھوڑائیے گا، ٹھیک ہے؟ وہی حکم میں فوراً لگاؤں گا، کتاب کے ساتھ حوالے کے ساتھ لگاؤں گا۔ شرط نمبر 2 ہو گئی، موضوع سے رائے فرق کوئی نہیں کرے گا، نہ ہی میں کروں گا نہ ہی آپ، یہ تو شرط آپ رکھ چکے، یہ دونوں کی شرط منظور ہے۔ اب میری شرط نمبر 3، مجھے تو ایسا گمان ہو رہا ہے کہ لائن پر کوئی آپ کہہ رہے تو میں مان لیتا ہوں نہیں ہے کوئی، اگر بیچ میں کوئی بولتا ہے، بیچ میں اگر کوئی بولتا ہو کہ کوئی بیچ میں بول گیا کہ چل میں بات کروں گا ایسا ویسا، تو بھی آپ کی شکایت کا اعلان ہوگا۔ میرے یہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، مجھے ایسا گمان ہو رہا ہے کہ لائن پہ، تو اس لیے میں یہ شرط رکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میری شرط مکمل ہوئی، آپ اپنا دعویٰ، ٹھیک ہے، اور حکم کے ساتھ بیان کریے،
और वही चीज़ मैं आपके घर के किताब से दिखा दूंगा तो आपकी शिकायत फौरन होगी, क्योंकि आप अपने दावे के साथ बात कर रहे हैं, आप अपने दावे के साथ बात कर रहे हैं। वही चीज़ मैं आपके घर के हवाला दिखा दूंगा कि ये चीज़ आपके घर में मौजूद है, तो आपकी शिकायत होगी। तो ठीक है, आप अपना दावा पेश करें और आपका मैं 3 मिनट देता हूँ। तो टाइम आपका शुरू हो रहा है, 11:47 लगा अभी, तो आपको 12 बजे तक का पूरा टाइम मैं दे रहा हूँ, पूरा राइट 12 बजे मैं बोलूँगा, ठीक है। झूठ पकड़ूंगा तो फौरन शिकायत होगी आपकी, ठीक है। चलिए अब शुरू करें प्रधान साहब, मैं आवाज़ बंद कर अपनी तरफ। नहीं, मैंने आपकी वो जो पहली वाली शर्त थी मैंने उसे मंजूरी नहीं किया, क्योंकि मैं कह रहा था कि 3-3 मिनट बात होगी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आपको भी 3 मिनट दिया जा रहा है, आप उसमें बोल दें मैंने जो झूठ कहा है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो मैं आप मेरे 3 मिनट में ऐलान कर दूंगा। तो इसमें मैंने ये शर्त मंजूर नहीं की है। और जो भी आप उसके अलावा शर्त रखें कि बीच में कोई है और आके बोलेगा, मैं आपको पहले ही कह दिया था कि मेरे बीच में कोई भी नहीं है और ना मैं किसी को कॉन्फ्रेंस में लिया, ठीक है। ये मैं आपको जो है वजाहत करता हूँ। बाकी जो भी आपकी शर्त रखी आपके दावे के मुताबिक और हुक्म के मुताबिक, मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने पहली वाली शर्त जो आपकी थी वो मंजूर नहीं की। मैंने कहा था कि 3-3 मिनट आपस में बात होगी। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो आप वो आपके 3 मिनट में पकड़िए, अगर आप झूठ बोलेंगे तो मैं मेरे 3 मिनट में पकड़ूंगा। क्योंकि अगर आप भी मेरे बीच में बोले, मेरे जहन में कोई बात आ रही है या दलाइल आ रहे हैं, तो आप जो है उस दलाइल को रुख मोड़ देंगे, क्योंकि मेरी जो है रुख आपकी तरफ चले जाएगी, वो दलाइल दिमाग से हट जाएंगे और जो बात आने वाली है वो भी चले जाएगी। इसीलिए 3-3 मिनट जो दिया जा रहा है उसी में बात करें, यही बेहतर है, यही अफजल है। सुन लीजिए प्रधान साहब, आप गलत समझ रहे हैं। वो 3 मिनट की तो शर्त हमारे और आपके बीच में तो तय है ही। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि बीच में बात करेंगे, मैं तो कह ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम लोग की तो 3-3 मिनट की बात तय है, हम भी बात करेंगे, आप भी बात करेंगे। इसीलिए तो मैंने आपको 3 मिनट का मुकम्मल टाइम दिया। मैं बोला ना 11:47 से 12 बजे तक का टाइम है, बोलिए आप। मैं तो ऐसा नहीं बोला बीच में खलते में बात करूंगा। मैं बोला कि अगर आप उस दौरान बीच में अगर बीच में अगर झूठ बोले या मैं बोलूंगा तो उस वक्त टोकने का होगा, हक होगा दोनों लोग को ही। बाकी तो 3-3 मिनट बात करें। अगर 3 मिनट में आप सुन लीजिए, 3 मिनट में मैं बात करूं, कोई झूठ बोल जाओ और मैं आप झूठ बोल जाते, ये नहीं चल पाएगा ना। आप बात करें 3-3 मिनट, कोई मसला नहीं है। मैं तो आपकी शर्त मान रहा था, सारी शर्तें मैंने आपकी मानी। आप मेरी शर्त मानने में आपको क्या हो गया? मेरे मिनट में क्यों बोलेंगे आप? मैं जब बोल रहा हूँ तब आप क्यों बोलेंगे? आपको वक्त दिया जा रहा है। मैं बोलूंगा ही नहीं, मैं कह रहा हूँ मैं बोलूंगा नहीं। अगर आप झूठ नहीं बोलेंगे तो मैं बोलूंगा ही नहीं। मैं तो कह नहीं रहा कि मैं बोलूंगा। बोलेंगे, बोलने का हक उसी वक्त होगा जब झूठ बोला जाएगा। बोलेंगे ही नहीं, क्या फायदा बोल करके? कोई बोलेगा ही नहीं, खलते मबस होगा नहीं। उस वक्त बोला जाएगा, उस वक्त बोला जाएगा, उस वक्त बोला जाएगा जब कोई झूठ बोले तब। बस खामोश हो जाए। मेरा दावा है कि इन्होंने फैजान साहब को फोन करके हिफ्जुल ईमान पर बात करने की कोशिश की। मैं इनसे कह रहा हूँ कि मैं हिफ्जुल ईमान पर आपको जो है बात करने के लिए तैयार हूँ कि इसमें हिफ्जुल ईमान की जो आप इबारत उठा कर बता रहे थे, इसमें कोई भी किसी किस्म की गुस्ताखी नहीं है और ना हकीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का ऐसा अकीदा है, ना हमारा ऐसा अकीदा है। और जो झूठ बांध कर दजल फरेबी कर कर उनके ऊपर कुफ्र लगाता है या गलत गुस्ताखी का फतवा लगाता है, तो हम जो है उसको जो कहते हैं कि नबी की हदीस है, जो एक मुसलमान को काफिर कहता है तो उसका कुफर जो है उसी के पर पलटेगा। तो इस बुनियाद पर हम उसको जो है काफिर कहते हैं और वो काफिर है, वो जाहिल है। मैंने किया दावा, मेरा दावा है कि इसमें कोई भी किस्म की किसी भी किस्म की गुस्ताखी नहीं है और हुक्म भी लगा दिया मैंने, जो इसको रखकर मौलाना हकीमुल उम्मत के ऊपर कुफर का या गुस्ताखी का फतवा उसी के ऊपर पलटेगा, उसी बुनियाद पे वो फिर हो जाएगा और वो जाहिल है, मुतलक होगा। जी बोले अभी आप। चलो ठीक है। मैं तो सोचा था कि आप लंबा चलेंगे, आप तो पहले टर्न में हार गए, चले गए आप। क्योंकि मेरी शर्त ही थी कि जो आपका दावा होगा वही चीज मैं अगर आपके घर से दिखा दूंगा तो आपकी फौरन शिकस्त हो जाएगी। मैं तो सोचा था कि आप बहुत लंबे चल पाएंगे, लेकिन आप तो
टाइट है खुद निकले। मैं बहुत लंबा सोच रहा था कि अब आपको लंबा लेके जाऊंगा, घंटा 2 घंटा, तो मैं आप तो पहले ही निकल गए। चले मैं आपके घर का हवाला दिखा देता हूँ, सुन लीजिए आप किताब का नाम, हवाला मैं आपको भेज रहा हूँ, ठीक है। तो आप तो निकल गए, तो आपकी कहानी खत्म हो गई एक ही हवाला में। मेरे पास तो बहुत सारे हवाले थे हिफ्जुल ईमान के ताल्लुक से। अब हवाला सुन लीजिए, मैं इबारत पढ़ के सुना रहा हूँ और आपकी शिकायत ना खलते में बात नहीं हजरत, खलते में बात नहीं, बात हुई हमारी शायद हुई थी, खलते में बात नहीं। मैं झूठ बोलूंगा तो आप खलते में बात कर सकते हैं, झूठ ना बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आप खलते में बात ना करें, गलत है। की बात तो सुन ले, ये नंबर पे व्हाट्सएप नहीं है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बताता हूँ। जी करें व्हाट्सएप करें जल्दी करें आप, मैं अपना टाइम रोक रहा हूँ, ठीक है। मैं अपना टाइम रोक रहा हूँ व्हाट्सएप करने तक। चले ठीक है, मैं अपना टाइम रोक रहा हूँ, करें हवाला पहले भेजता हूँ फिर पढ़ता हूँ, ठीक है। भेजे पहले, मैं अपना टाइम रोक रहा हूँ, ठीक है। ठीक है हाँ जल्दी भेजे आप। देखिए मैंने आपको लिख दिया। भेजा आपने क्या भेजा आप आया है क्या? देखिए भेजू मैं हवाला भेजू, ये नंबर है 7740 वाला, ये नंबर पे भेजू। हाँ ठीक है, ये देखिए मैंने आपको पर्सनल पे हवाला डाल दिया है, ठीक है। तो आप पढ़े हवाला, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं हवाला पढ़ के बता रहा हूँ। मुसन्निफ का नाम सुन लीजिए, किताब का नाम सुन लीजिए, सीरतुन नबी बादल विशाल नबी, हिस्सा सत्तों में लिखने वाले मोहम्मद अब्दुल हई साहब की किताब है। अब सुन लीजिए, सफा नंबर 169 सबसे पर क्या लिखते हैं कि क़याम पाकिस्तान से बहुत पहले हकीमुल उम्मत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना अशरफ अली थानवी ने एक रिसाला हिफ्जुल ईमान के अंदर इल्म गैब में एक जुमला लिखा था, जिसमें हर सही उल फिक्र मुसलमान ने एतराज किया था। आप कह रहे उसमें कोई गुस्ताखी नहीं है, आपके घर के लोग मान रहे हैं कि हर सही उल फिक्र मुसलमान ने एतराज किया था, हर सही उल फिक्र में मुसलमान ने एतराज किया था। ये आपके घर की किताब है। मैंने क्या कहा था शर्त में, तीसरी शर्त में, कि अगर वही चीज मैं आपके घर पे दिखा दूंगा जो इसमें कामुल हरमैन में, तो आप हार जाए। मेरे पास बहुत हवाले हैं, क्योंकि आप एक ही हवाले में ढेर हो गए, ठीक है। आपकी कहानी खत्म हो गई, आपने हुक्म लगाया था और मैंने शर्त भी रखी थी, ठीक है। तो आप दोनों में यार आपसे कभी बात करेगा, ठीक है।